So good evening and welcome to Spirituality and Healing Meet. I'm Shashidhar, your host, and I welcome you all to the meet today. And the agenda for today is the continuation of last week. So we are going to have a question-based discussion on the universal law of least effort. And we had discussed something during the last session. So let's have some basic highlights of that session. क्या learning थी last session से? कौन शेयर करना चाहेंगे ताकि हम उसी के ऊपर बिल्डअप करते हुए आज का सेशन देखेंगे. क्या थे लर्निंग्स? चेक योर नोट्स एंड थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. जिन्होंने वीडियो देखा हो वो भी शेयर कर सकते हैं. जिन्होंने अटेंड नहीं किया, अगर आपको कोई उसमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, सो वी कैन डिस्कस दैट, राइट? यस. तो क्या मेजर टॉपिक क्या थे, मेजर डिस्कशंस क्या थे पिछले हफ्ते? यस टोनी, गो अहेड. You're on mute. Yeah, so last week what was discussed was that we should accept whatever has happened in the past, and we should, or whatever is even happening in the present, and we should not struggle with either of them. So that because if we just stop struggling with the past and what is happening in the present, then eventually whatever we are wanting to manifest will manifest somehow or the other, because then the universe looks at it and or whatever gives you the result ultimately, whatever. Very good, Tony. So good understanding and good learning from there. Just to build up what he said, what Tony shared. So what we are saying here is acceptance is the key to manifest your desired results. So acceptance से क्या होगा? आपका जो frequency है, जहाँ पे आप operate कर रहे हैं life में, वो ऊपर बढ़ जाएगा. And you will be able to match it with the frequency of your desires, and the desires will manifest faster. So as we said, this is one of the very, very powerful, you can say, way of increasing the frequency at which you are operating in life. That is the crux of the matter. So very, very powerful. Very good. So you are aligning yourself with the subconscious mind or the universal mind. So universe will conspire to give you success. That's what we had discussed, right? Very good, Tony. Yes, Preeti ji, go ahead. मतलब लास्ट वीक वी डिस्कस्ड लाइक जब तक हमारी किसी भी कुछ भी हम काम करेंगे, व्हाटएवर आवर डिजायर्स आर, जब तक हमारी एनर्जीज आर फ्री फ्लोइंग, तब तक इट इज वेरी इजी टू अचीव एंड मैनिफेस्ट. When there is some sort of guilt, fear, any sort of negative emotion around us, we tend to create the very same aura, and which is the biggest hindrance in manifesting things. Very good, perfect. So the magic of manifesting results is to get your conscious mind in harmony with the subconscious mind, so that you get the tathastu from the universe and then manifest that desire. तो अगर कॉन्शियस माइंड में आपका सक्सेस का थॉट है और सबकॉन्शियस माइंड में आपका फेलियर का इमोशन है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इज द फेलियर. व्हाई? बिकॉज कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड. कंपैरिजन के लिए परसेंटेज में बात करें तो कॉन्शियस माइंड इज 10% पावरफुल, सबकॉन्शियस माइंड इज 90% पावरफुल. सबकॉन्शियस माइंड के इमोशंस जो हैं वो बड़ी जल्दी यूनिवर्स के साथ जो तालमेल में हैं, वो आपकी लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो जो कुछ हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिजर्व, बिकॉज व्हाट वी डिजर्व इज decided by the frequency of the subconscious mind. And obviously what we want or desire, that is from the conscious mind. So this is what we had. Basic learning of the last session was what we desire, or what is our goal or target. That is one thing which is in the conscious mind. And what we deserve or what we are manifesting, that is decided by the universe. यूनिवर्स के साथ वो तालमेल होता है तभी वो मैनिफेस्ट होता है, और वो आपका डिसाइड करता है सबकॉन्शियस माइंड. तो आपके इमोशंस जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं, आपके बिलीव्स, आपका ईगो, ये सब चीजें डिसाइड करेगा कि आप क्या डिजर्व करते हो.
और वही लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर गैप है जो आप चाह रहे हैं और जो हो रहा है, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, और इसी को हमने कहा था कि यही साधना है, और यही आपके कुछ हमने डिस्कस किया था कि कुछ आपको क्या है, आपके पास कुछ ब्रह्मास्त्र हैं, आपके पास कुछ बेसिक पावर्स हैं जो और लोगों के और जीवों के पास नहीं है. So there are some things that we have which others don't have, and that is what we are going to discuss today. तो थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया कि क्यों हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं. अगर लाइफ में आपके कुछ नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था. इस पे अगर किसी को डाउट है तो पहले हम वो बात करेंगे, फिर हम आज डिस्कस करेंगे तरीके क्या हैं, जो हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया था लास्ट वीक. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू ए स्पेशल टेस्ट. स्पेशल टेस्ट है जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि क्या आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड हैं. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, राइट? सो दैट विल बी द टेक अवे ऑफ दिस सेशन. सो एनी क्वेश्चंस? लास्ट वीक में जो हमने डिस्कस किया, व्हाट वी डिजायर एंड व्हाट वी डिजर्व, ये क्लियर है और सबको दिख रहा है कि इसमें लाइफ में हमारे गैप है, लाइफ में गैप है, राइट? लाइफ के एक्सपीरियंसेस में ये गैप है, करेक्ट. और इस गैप को कम करने के लिए हमको क्या करना है वो हम आज देखेंगे. तो गैप है और क्यों है ये क्लियर है आपको, इस पे डाउट नहीं होना चाहिए. क्योंकि फिर अगर आप अभी भी लोगों को, अगर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं या खुद को ब्लेम कर रहे हैं, देन यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैप. तब आप एक टनल में फंस गए हैं और वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी क्लियर about the learning of the last session, which was what we desire and what we deserve. These are two different worlds, and once we know what is a gap, then we can do something about it, correct? और ये जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, that is exactly what we deserve right now. So Mamta ji, welcome. Just recapping for your benefit, what we decided in the last session. So if you have seen the video, great, and otherwise you can be part of the session. तो basic learning यही थी कि हम कुछ goals हैं, जो desires हैं हमारे, वो conscious mind से आते हैं, and what we deserve or what we are actually manifesting in life, this is coming from the subconscious mind. So we all agreed that there is a big gap. Normally for more than 95% of the population there will be a big gap. For some people the gap will be less. For some people it will be in one particular area, maybe health or wealth or relationship. For some it could be in all the areas, and some will be experts or genius or masters who will be manifesting all their desires in all areas of their life. So they are skyrocketing to on the spiritual journey and creating the results. So that is what we had discussed in the last session. Yes, Parth, you wanted to share something? Go ahead. म्यूट पे हो, मैंने सबको म्यूट पे डाला है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. तो मतलब शेयरिंग नहीं, मतलब एक क्वेश्चन था. मैंने कहा अगर दूसरों को ब्लेम करना नहीं बट खुद को ब्लेम करना कैसे इसमें गलत है? बिकॉज जैसा आपने कहा कि यू नो इट इज आवर ओन थिंग्स, आवर ओन एक्शंस दैट लीड टू दैट. या सो ब्लेम इज ए नेगेटिव एनर्जी. इसलिए मैंने कहा कि ब्लेम नहीं करना. यू डोंट ब्लेम अदर्स, यू डोंट ब्लेम योरसेल्फ. जैसे आप ब्लेम अपने आप को करोगे, आप गिल्ट ट्रिप पे चले जाओगे. हाय मैंने ये क्या कर दिया, तो हाय तौबा मचाने से काम नहीं होगा. तो यू हैव टू जस्ट लर्न, हाँ आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई मेड अ मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, टुडे आई विल मेक करेक्ट इट. पता लग गया ना, अवेयरनेस में आ गए ना. तुमने कहा था ना आपके काफी सारे आपके पास मैजिकल पावर्स हैं, सिद्धियां हैं, करेक्ट? तो सिद्धियां मैं बोलता हूँ बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइन एंड ऑल डिवाइन बीइंग्स हैव स्पेशल पावर्स. तो हमारे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं. तो हमारी एक सिद्धि ये है कि हम अपने आप को अवेयरनेस में ला सकते हैं. जैसे अवेयरनेस में आ गए, वी कैन नाउ टेक द करेक्टिव एक्शन. तो फॉरगिव करना है अपने आप को, ब्लेम नहीं करना है. गलती हो गई, अपने आप को माफ करो. पावर आ गई, अब क्रिएट करो, डिसिप्लिन में ले आओ, अपने आप को डिसिप्लिन में ले आओ, एंड देन मूव फॉरवर्ड. स्पिरिचुअल जर्नी, ह्यूमन बीइंग हो, गिरोगे, राइट?
it's like a journey of spider. I always remind myself whenever I used to fall, I would remind myself. Spider के efforts हैं. ऊपर चढ़ोगे गिरोगे कोई बात नहीं, दोबारा गिरेंगे दोबारा चढ़ेंगे. So that is the spirit, right? Right, Paul? So no blame. Blame is a negative energy. Blame nahi. Forgiveness. Forgiveness is positive. Be aware of the mistake you made. Forgive yourself. Forgive all the people. So उनके लिए कोई blame नहीं, अपने लिए कोई blame नहीं. That will give you power. And you will be free from negative energies, right? And that's for everybody, by the way. Yeah, that's how you catch yourself. So awareness is a big siddhi. 3 सिद्धियों पे बात करी थी हमने पिछली बार. हाँ, हमने कहा था डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. किसको याद है 3 सिद्धियां कौन कौन सी थी? हमने बताई थी. Human beings are bestowed with 3 miracles or magical powers. सिद्धियां. हाँ जी, कौन याद दिलाएंगे सबके लिए? Awareness, very good. Acceptance. Awareness, अच्छा ठीक है. Acceptance और Gratitude, okay. और ये तो ब्रह्मास्त्र है, पर सिद्धियां जो थी वो थोड़ी सी अलग बताई थी मैंने, जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में है, औरों में नहीं है. ये सब भी आएंगी वैसे. अवेयरनेस, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, वो भी आ जाएगा. ठीक है, चलो ये सब मिला लेते हैं. इसके अलावा भी 2 और चीजें बताई थी. यस टोनी, गो अहेड. If you're talking about the difference between human beings and other species, so we have the power of thoughtfulness, we have the power of speech. Very good. And, Power of speech and power of smile. And power of smile, yeah. And power of thinking, power of analysis. Okay, so that will come in the awareness. Awareness में सब आ जाएगा. एक बार aware हो गए तो then you will start the conscious mind में, फिर आप analysis करने लग जाओगे. That's fine. Yeah, and the power of conversation or the tongue, whatever I think. हाँ, तो speech में आ गया ना. Speech में आ गया. ठीक है. Yes, power of speech is very very powerful. By the way, only human beings have it. And how we misuse that power is the kind of abuses or expletives that we use in our language. और आजकल हिंदी movies are bombarding us with that. भाई का, बाप का, मामा का, all those dialogues are getting ingrained into youngsters, right? So you can understand the kind of language that we have the power to use and create, because language is creative. Our speech is creative. So we can create magical results with our speech. Tools of creation क्या है? Thoughts, words, and deeds. Words are very powerful. So if you use high frequency words, mantras, मंत्रों का उच्चारण करेंगे गालियों की जगह पे, तो लाइफ में क्रिएटिव आएगी चीजें, लाइफ में क्रिएशंस आएगी. और हम क्रिएशन की ही बात कर रहे हैं. वी वांट टू मैनिफेस्ट आवर डिजायर्स. गालियां देने से मैनिफेस्ट करोगे डिजायर्स? लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, आर दे गोइंग टू मैनिफेस्ट द डिजायर्स? नो वे. पावरफुल mantra chanting will give you that. So speech, when you speak to with others, you need a smile. You are showing that I am happy and I am happy to talk to you and I am grateful to you. So there is a very good saying that I have learned in another program: feeling happy, giving thanks. Right, Mamta ji? So feeling happy, giving thanks. I am happy and I am giving thanks to everybody. Very powerful. And now it has become a way of life for me. कुछ भी होता है, feeling happy, giving thanks. There is no way I can be negative. सवाल ही नहीं पैदा होता. So remember these mantras, very very powerful. पहले क्या बोलते थे हॉस्टल लाइफ में? अगर कोई रहा हो तो मालूम है क्या कैसी गालियां देते हैं. तो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे तो आपकी नेगेटिव लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पावरफुल क्रिएटिव लैंग्वेज बन जाएगी. क्या? स्टार्ट चैंटिंग mantras, start speaking with a smile. And when you are doing this, now Preeti ji, what you said will come across. Acceptance, forgiveness, gratitude अपने आप आ जाएगा ना. पर वो पावर ऑफ स्पीच से आ रहा है. जो सिद्धि है हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसको मिसयूज कर रहे हैं. ब्रह्मास्त्र पड़ा है, हम उसे मिट्टी खोद रहे हैं. Right? So you have to understand, you have to use a power like a power, super power. Okay, what is the next one? स्पीच पे बात हो गई, स्माइल पे बात हो गई, राइट? अवेयरनेस. अवेयरनेस से हम अपने मंत्रा चैंटिंग से क्या करेंगे? अवेयरनेस में अगर आ गए और हमको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना. हमारे डिजायर्स अगर इस लेवल पे हैं
राइट, हायर लेवल पे हैं, और हमारे जो यू कैन से व्हाट वी डिजर्व, वी आर ऑपरेटिंग इन लाइफ एट ए लोअर लेवल, तो डिजायर्स फुलफिल नहीं होने वाले हैं। हमको बढ़ाना पड़ेगा, ये मैच करेंगे तब वो मैनिफेस्ट होगा। कैसे इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी? लास्ट टाइम वी टच्ड अपॉन दिस, सो एनीबॉडी हु रिमेंबर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या बोला था, क्या क्या करेंगे? ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सब उसी के लिए हो रहा है। बट एफर्ट्स के डोज बढ़ाएंगे। हाँ, एफर्ट्स के डोज बढ़ाएंगे, किसी भी चीज के डोज बढ़ा सकते हैं, चाहे फॉरगिवनेस का बढ़ाएं, ग्रेटिट्यूड का बढ़ाएं, एक्सेप्टेंस का बढ़ाएं, सबके डोज बढ़ा दो। अगर हाँ, तो वेरी गुड नीता जी, गुड ऑब्जर्वेशन एंड गुड लर्निंग, करेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ मैंने 2 चीजें और बोली थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का बहुत पावरफुल तरीका है। एक तो मैंने बताई दिया, पावर ऑफ स्पीच, मंत्रास यूज करो, राइट। सेकंड क्या है ममता जी, एनीथिंग यू वांट टू से ऐड ऑन, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू से समथिंग व्हिच यू नो। हाउ डू यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी? भैया अफर्मेशंस। Okay, affirmations is a way to manifest the desire. उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर चाहिए, वो हाई फ्रीक्वेंसी से आएगी। हाई फ्रीक्वेंसी को करने के लिए 3 चीजें बताई थी मैंने, पिछली बार भी कहा था। तो एक तो था मंत्रा चैंटिंग, तो अब्यूजेस को कम करो, मंत्रास को चैंटिंग ज्यादा करो। नंबर 1, स्पीक विथ स्माइल, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज व्हाट, हाउ डू यू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी? ओके, हाँ, meditation and Giving, I and think, by giving, like गिविंग तो उधर वाले में आ गया। टोनी, यू आर राइट। ममता जी, हम क्या करते हैं रोज सुबह? breathing exercises, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। right? Meditation and breathing is the only way by which you can increase your frequency. इसको बोल्ड में एयर मार्क करके रख दीजिए। ऑल दीज अदर थिंग्स आर जस्ट ए, उसके ऊपर टॉपिंग्स हैं। बेसिक चीज क्या है? मेडिटेशन एंड प्राणायाम, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। ये सब करने लगोगे तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, तो फॉरगिवनेस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। दैट इज अ रिजल्ट, पावर ऑफ गिविंग, ऑल दैट। आप सही ढंग से you will use the law of giving, you will use the law of karma effectively. ये सब रिजल्ट्स हैं। इनपुट क्या है? ये सब आउटपुट है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? You will be able to forgive others, this is an output. You will be able to accept yourself and others, this is an output. You will be grateful to others, this is an output. इनपुट क्या है? क्या करने से ये आएगा? मंत्रा चैंटिंग करने से आएगा, ब्रीदिंग करने से आएगा, प्राणायाम करने से आएगा। गेट दैट? ये करना शुरू करो तो वो होता रहेगा। That is what I wanted to say. So you need to get the connection right. Now you say I want to forgive, लेकिन forgive नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? You're not letting go of the past, right? You're not able to forgive yourself and others. आप blame पकड़ के बैठे हुए हो, तो क्या करना है? मेडिटेशन करना है और ब्रीदिंग करनी है, निकल जाएगा। माफ कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डिजायर्स अपने आप फुलफिल होंगे। क्यों? क्योंकि डिजायर्स आपने ऑलरेडी एफर्मेशन बना के भेजे हुए हैं कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से थॉट जा चुके हैं यूनिवर्स में, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। तो जैसे जैसे आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करते जाएंगे, दैट यू विल डू बाय ब्रेथ वर्क, meditation and chanting. I'm saying this from my experience. There could be many other ways you can think of, but this is the most powerful way that has helped me to move on. And I firmly believe that this is a very, very, very powerful way. In fact, if somebody has any better way, tell me. I'll accept that also. Yeah. So I'm always open to suggestions, but it should be better than what I'm suggesting. Then I will accept your suggestion. Otherwise, you follow my suggestion. Right? Okay, so everybody clear? Parth, you want to add something? Agree or disagree? Huh? Thinking हम बेटर क्यों कहते हैं? You know, बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे। ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं ब्रेथ वर्क, बट you know,
But when we are talking about pathways, different pathways to be in the meditative zone, so why are we comparing them in a way कि वो ऊपर नीचे हैं? Why such distinction? Tell me another thing which is comparable to that. मैंने कहा breath work, meditation and chanting. Give me an alternate one which will help you to accept, love, accept, forgive and thank people in a better way. After a time, life itself becomes like that. After some time of practice, life itself becomes like that. After practice of what? Like what are you going to practice? Tell me that. कोई भी वे आप जिससे आप एक मेडिटेटिव जोन में जाते हो, जिसको आप ये कह सकते हो कि जिससे आप सत्वगुणी जोन में जा रहे हो, ठीक है? When you're connecting, your soul is at peace, your mind, body and mind, body and soul are aligned with the universe. ठीक है? It could be any activity. ठीक है? Which activity? Tell me specifically. Going to gym? आपकी कोई going for walking? डांसिंग हो सकता है, ठीक है? जैसे सिंपल आप कह सकते हो म्यूजिक एंड डांस, यू गेट इनटू दैट प्रेजेंट वाला जोन, ठीक है? इवन मतलब मैंने ट्राई किया था, इट वाज लाइक क्या कहते हैं वो होता है सूफी वर्लिंग, यू हैव हर्ड ऑफ? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही मतलब अलग लेवल कहाँ पहुंच जाता है आदमी, ठीक है? So now you are talking what I wanted to listen, right? You can be so passionate about something that you lose yourself. It could be dancing, it could be painting, it could be singing, it could be anything creative where you lose yourself. That is the key part. You have to lose yourself. वहां पे आप नहीं होंगे. You will merge into the divinity then. That is giving you that feeling. So you have to be very, very clear what you are saying. Alternate methods हैं, but जैसे भक्ति है, you start singing devotional songs, you will merge with the divine. Fully accepted. तो चार, इसीलिए मैं बोलता हूँ चार तरीके हैं, राइट? जो मैंने बात करी थी ये राजयोग की बात कर रहा हूँ. हाँ, दूसरा ज्ञान योग है जहाँ पे आप वेदांता विजडम लेके पहुंच सकते हैं. We are aware of that also, right? I conduct these classes. Many of you have attended it. You have attended it, Parth, so you know that, right? तो ज्ञान योग से पहुंच सकते हैं, भक्ति योग से पहुंच सकते हैं, कर्म योग से पहुंच सकते हैं. कोई कहता है मेरे को कोई मतलब नहीं है भगवान से, मैं लोगों की सेवा करने के लिए पैदा हूँ. अमित जी, you trigger him, he is 24 hours trying to serve people. Yes, no, I mean, उनको बोलना नहीं पड़ता है. उनका एक ही पैशन है लाइफ में, how to serve people and how to move into from कलयुग to सतयुग, राइट? अभी भी चेन्नई ट्रिप में लगे हुए लोगों की सेवा करने में. कर्म योगी है वो. He only wants to serve people. और कोई एजेंडा नहीं है. तो कर्म योग से आ सकता है. जो आप बोल रहे हो पार्थ, that is भक्ति योग. You are involved in one particular line so much that you lose yourself. Okay, devotion. So you can be devoted to anything creative, dancing, singing. Absolutely perfect. I understand what you're trying to say. Good, very good path. So find out something where you can lose yourself and you will merge with the divine. Brilliant, very good. But that level of devotion comes very, very rare. Okay, so instead of focusing on one particular path and going 100% on that, different stages में different levels पे आप जा सकते हैं. तो कर्म योग भी करिए, भक्ति योग भी करिए, राज योग भी करिए, ज्ञान योग भी करिए. That is my approach. Because in every step you will move one step forward. हर बात पे कहीं ना कहीं तो एक फेस आएगा जब राज योग will be predominant in your life. करेक्ट? तो साधकों के लिए जब कोई साधना में होता है, एक बार आप सिद्ध हो जाएंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप चारों छोड़ दीजिए, you are in your own space. आप एक्सटेसी में रहेंगे. पर वो तब आएगा when you are already become a सिद्धा, सिद्ध पुरुष बन जाओ. जब आप साधक हो, जब आप साधना के पथ पे हो, तो you have to follow discipline and follow a few practices. Practice is a must. Yes. और वो प्रैक्टिस क्या होगी, ये आपको अपनी साधना के लिए करना है. This is your personal journey. Spirituality is a personal journey. तो अब आपको देखना है कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी कैसे
मूव करेगा. मेकिंग सेंस? तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आपकी साधना कैसे होगी पूरे दिन में. आप देखिए मेरी साधना का टाइम क्या है और मेरे को क्या करना है. ज्ञान योग करना है या राजयोग करना है, कर्म योग करना है या भक्ति योग करना है. ओके, दैट इज हाउ यू कैन. सो यू कैन रीड सम स्क्रिप्चर्स of Bhagavad Gita if you want. That will be Gyan Yoga. Just trying to distinguish. ठीक है जी. और you can be in the भक्ति योग में आप ज्ञान योग तो मैंने बता दिया. भक्ति योग में आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया. Right? You can sing devotional songs. You can be. हाँ. If you are into analysis and thought processes, यहाँ से आप insights ले रहे हो. That comes under Gyan Yoga. Gyan Yoga. You are using your intellect. You're using your intellect, that is Gyan Yoga. That has to be connected with the divine. Then you will get the divine guidance. Right? Or you can start with Ashtanga Yoga, जो हम पूरा कर चुके हैं. Ashtanga Yoga क्या है? वो राज योग है. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. So that is why I said breath work and meditation comes in there. So that is part of Raj Yoga. राज योग कोई और पार्ट्स भी हैं क्या ब्रेथ वर्क के अलावा? 8 पार्ट्स है ना, अभी तो बताए. नहीं, हाँ, मतलब वो पूरे 8 वो है या मतलब, बट आप जैसे अभी सिर्फ एसोसिएट ब्रेथ वर्क से ही कर रहे थे ना राजयोग को. नहीं, ब्रेथ वर्क एंड इन सब में अगर आप देखोगे यम नियम इन इस थ्योरी. जैसे अगर एक ही बात करते हैं अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, तो वहां पे ब्रेथ वर्क का एक पार्ट है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली ब्रेथ वर्क पे ही फोकस कर रहे हो. वो अपने आप एक स्टेट में फ्लो में सेट हो जाता है ब्रेथ वर्क. जब आप सपोज आप ध्यान की स्टेट में तक पहुंच गए, तब आपका जो ब्रेथ है वो अपने आप ही फ्लो स्टेट में वहां पे एस्टैब्लिश हो जाता है आपके हिसाब से. Remember the steps. Okay. First you have to know the basic concepts. Yam and niyam comes there. Then you have to keep your body in control, which is the asana. Then you come to the pranayam, which is the connection between body and mind. It is all very systematic path, right? आसन के बाद प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद आसन नहीं करते. आसन करते हैं ताकि बॉडी कंट्रोल में आए. फिर माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम कर रहे हैं. प्राणायाम से माइंड सेटल होगा, क्लीन होगा, वरना मेडिटेशन हो ही नहीं सकती. दैट इज वाई प्राणायाम के बाद प्रत्याहार और धारणा करते हैं. देन यू गो टू ध्यान. ध्यान इज मेडिटेशन विच वी नॉर्मली एसोसिएट विद. सो स्टेप्स यही हैं, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. उससे पहले के बेसिक कंसेप्ट्स, उसको आप ज्ञान योग का पार्ट भी मान सकते हैं. बट यम एंड नियम आर बेसिकली प्रैक्टिसेस which will purify you from inside and outside, dealing with yourself, dealing with others, self-discipline and discipline with others. Discipline is the first and foremost, right? That is what the steps of Raj Yoga is. So it is all connected and building up. But majorly जो transformation आती है वो breath work और meditation से आती है. That is why I'm saying, once you do breath work and meditation, you are on the way to attain samadhi at some point of time in your life, this life or next life, if you believe next life, right? Yeah. So that is the process. So you have to understand the process. First, right understanding is important. Then right practice is important. That will put you on the spiritual journey. Superb. Are you connecting with me? Yeah, good. So किसी भी 4 पार्ट्स में आप देखेंगे, आप जो भी करना चाह रहे हो इन्हीं 4 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि यही योग के 4 पार्ट्स हैं. और योग मीन्स one, being one with the divine. Now you can choose whatever you want. Devotion can be to Lord Krishna, devotion can be to Lord Rama, devotion can be to your singing, it can be to your dancing, it can be to your whatever connection with nature. आप घूमने चले जाओ, हाँ, आप घुमक्कड़ हो मेरे नजर में, लेकिन you are connecting with the universe. आप जा रहे हो हरिद्वार, ऋषिकेश, खो गए, brilliant. That will give you the boost to move forward. Frequency बढ़ रही है आपकी, लेकिन at some point of time you will connect with breathwork, meditation and samadhi and Gyan Yoga to reach the ultimate realization of the divine. अहम ब्रह्मास्मि बोलने के लिए आपको ज्ञान योग चाहिए, right? That's what I was saying. Good, very good path, good discussion, great, wonderful. I hope it opened up a lot of things for people, right? So that's what we are talking of. Yes, anybody else who would like to share? Feel free, because आज का ज्ञान ज्यादा नहीं है. लास्ट में मैं थोड़ा सा
एक टेस्ट बताऊंगा आपको जो मैंने बताया था, मैं उसको इंट्रोडक्शन अभी नहीं दे रहा क्योंकि एक बार मैं बताऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट इन 5 minutes, then you will do the analysis, right? So anybody has any questions, let me see that, otherwise I will go on with that test. टेस्ट आपका टेस्ट नहीं है, एक टेस्ट दूंगा जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट जो करना चाहते हो और जो हो रहे हैं उसमें गैप है, क्या है और कैसे है, राइट? अनीता जी, गो अहेड। सर लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपने कहा था कि सब कॉन्शियस माइंड को हार्मोनी में लेके जाने का एक प्रोसेस होता है, तो आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि वो प्रोसेस क्या है, तो वो अगर पॉसिबल हो तो बता मैडम वही दीजिए। बात हो रही है, उसी का है ये पार्ट। थ्योरी मैंने बता दिया था कि जो भी हम करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को हार्मनी में लाना है ताकि यूनिवर्सल माइंड से हम कनेक्ट हो जाएं और वहां से तथास्तु मिल जाए और हमारे डिजायर्स मैनिफेस्ट हो। ये थ्योरी था, ये हम कर चुके। अब हम प्रैक्टिस की बात करें। प्रैक्टिस में क्या कहा अभी मैंने अभी जो बोला, बताइए मैंने क्या बोला पार्थ के साथ डिस्कशन में? हाँ, वो आपने भी सारा बताया है। प्रैक्टिस में आपको साधना करनी है। साधना कैसे साधना करेंगे? करनी है, मंत्र योग के चैंटिंग 4 पार्ट हैं। कोई भी 4 पार्ट को आप पकड़ लिए, जो आपको उस समय अच्छा लग रहा है उस पार्ट पे आप जाएंगे आगे। राजयोग कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन यानी कि प्राणायाम मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कर्म योग कर रहे हैं तो लोगों की सेवा करते रहे हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको भक्ति योग करना है तो आप भक्ति में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, डिवोशन बढ़ाएंगे अपना, राइट? या फिर ज्ञान योग, आप भगवत गीता में थ्योरी पढ़ लीजिए और एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ेंगे ज्ञान योग से। आप डिवाइन ज्ञान को ले रहे हैं, तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं आपकी उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के डिजायर्स के लेवल तक पहुंच जाए और वो मैनिफेस्ट हो जाए। उसी की बात करें, ठीक है जी। तो जो आपको पास अच्छा लग रहा है उसकी एक अपनी दिनचर्या में एक साधना का एक रूटीन बना लीजिए। मैं अपना रूटीन शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा 24 घंटे का रूटीन उसी पे है। मैं कुछ और नहीं करता आजकल, मैं सिर्फ साधना ही करता हूँ। साधना, सत्संग और सेवा, मेरा यही काम है। मैं और कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, बाकी लोग तो जॉब कर रहे होंगे, मैंने सब छोड़ दिया। मेरे लिए यही है, मेरे लिए स्पिरिचुअल हीलिंग ये सब कुछ है और मैं यही करना चाहता हूँ इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। Okay, till I reach the self-realization state, I am doing this only. I am very clear. Okay, so now you have to decide what is going to apply in your life. अब पार्थ सोच रहे होंगे अभी तो मेरे को जॉब करना है, अभी तो मेरे को फैमिली लाइफ देखनी है। Yes, you are in that life, so do that. Okay, तो पहले ब्रह्मचर्य आता है, यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ है, उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन, यहाँ पे फैमिली लाइफ आता है, उसके बाद वानप्रस्थ आएगा when you practice non-attachment. And then finally, you are into moksha stage where you are one with the divine. Okay, and all these stages merge into each other. In last time मैंने जैसे बताया था, you are going to fulfill your desires. Doesn't mean you are going to run away from life. पहले अपनी स्टडीज पूरा करिए, make yourself capable of earning the livelihood. फिर wealth को accumulate करिए. Accumulate means generate करना है. You generate wealth by doing business or job or whatever. Enjoy family life, so that will take care of your desires. So काम, अर्थ, अर्था जो है, kama, all this will be fulfilled there. Then you move on to dharma, and then you move on to moksha. Clear है ये? So you have to get the connection of the 4 pillars of life with the 4 stages of life. तो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, और ये आपको 4 अपने लाइफ के इंटरवल्स में लाना है, which is what? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. And this is already listed in our शास्त्रों में लिखा गया है. तो किसी ने नहीं बोला है कि आपको लाइफ से भागना है. No. Enjoy life, but enjoy life by serving others. While serving others, don't snatch from people. छीना झपटी में मत पड़ो, कंपैरिजन में मत पड़ो, अपनी जर्नी को पकड़ो और दूसरों की
सेवा करते हुए आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। ओके, मेरा ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए बीच बीच में मेरे को कोई संजीव होता तो रोक देता है बीच में, अमित जी भी रोक देते हैं, बाकी आप सब लोग सुन ही रहे हैं। तो ओके, लेट मी हैव सम शेयरिंग फास्ट। 43 हो गए फास्ट शेयरिंग, एंड देन आई विल गिव यू दैट 5 minutes ज्ञान मोर फॉर द टेस्ट। ओके, who wants to share? No, I just had a question. Yes, go ahead. You said there were 4 paths or 4 ways that we can adapt. That is Karam Yoga, Bhakti Yoga, and what was the first one? Raj Yoga, and then 4th is Gyan Yoga. Raj Yoga. राज योग, जो हमने आसन अष्टांग योग किया था वो सारा राज योग है। Okay, fine. जो आप अभी सुबह उठ के आसन प्राणायाम वगैरह करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ राज योग। Okay, fine. तो प्राणायाम और मेडिटेशन जो आमतौर पे सब लोग करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द राज योग, ठीक है ना? यस, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी? ओके, सो नोबडी, राइट? रेखा जी कुछ बोलना है? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग तो ये सारे पाथ ही फॉलो कर रहे हैं ना, हम लोग सुबह मेडिटेशन भी करते हैं, मंत्रा चैंटिंग भी करते हैं और फिर प्राणायाम भी करते हैं, तो हाउ वी अडॉप्ट वन वे? अडॉप्ट ऑल, आई सेड ना, अडॉप्ट ऑल, आई डू ऑल। ओके, जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस आते हैं कर लिए। 1 घंटा ज्ञान योग करिए, 1 घंटा मेडिटेशन प्राणायाम करिए, मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 घंटे में 4 पार्ट्स हो जाएंगे आपके। 2 सुबह करिए, 2 शाम को करिए। सही, आप अपने हिसाब से रूटीन करिए। आधा घंटा रखिए, अगर ज्यादा लग रहा है 4 घंटे ज्यादा है, 2 घंटे ही दे सकते हैं, आधा घंटा करिए। ठीक है, ओके। और आपकी कॉलिंग आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपको उस समय कौन सी चीज ज्यादा पैशनेटली बुला रही है, आप उसी में जाएंगे। ठीक। जब आप सरेंडर कर देंगे ना डिवाइन को, तो डिवाइन विल गाइड यू। डिवाइन वही बताएंगे जो आपको चाहिए उस समय। ठीक है, गुड। कई लोग वॉकिंग में जा सकते हैं, सुबह उठ के वॉकिंग करने जाते हैं, उसी में आपका काफी कुछ बीइंग विद द यूनिवर्स विल ओपन अप फॉर यू। पीपल गो टू द पार्क, सिंपली वॉक, और वॉकिंग में ब्रीदिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, उनके लिए वो ब्रीदिंग काफी है। दे आर वन विद द यूनिवर्स। वो पेड़ पत्तों के साथ, फूलों के साथ खुश है। हमारे ग्रुप में पहले एक रीमा जी आती थी, इफ पीपल नो, शी इज ए लवर ऑफ मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने चले जाती हैं, एंड शी टेक्स लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल, and she is very happy with that. She gets connected with the universe with that. That's good enough. Okay. If you are connected with the universe, you are connected with the divine. Simple hai. And universe is your body, right? Yes. Physical body is one with the universal body. Universe. Right. Absolutely perfect, great. जो अच्छा लगे वो करिए। ठीक है। Connection divine के साथ बनना है, that's it, simple. Okay. If you can see divine in your beloved, you do that. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? Good enough. Yeah, so you can do whatever, be connected with the divine, invoke the divinity, because you are divine, that's all. इतना ही बोलना है। Thanks sir. Yes, who else? Anybody else who wants to share? भैया आई थिंक कि हम लोग अपना जो सांस भी लेते हैं ना, तो वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा। मतलब मुझे लगता है कर्म योग से आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद, लाइक दैट इज द पाथ आई फॉलो फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो मुझे लगता है कि कर्म इज लाइक जो भी कुछ हम करते हैं, दैट इज विद लॉट ऑफ पैशन, दैट इज अ मेडिटेशन फॉर मी। Whatever I do, maybe serving people or doing anything for anybody for that matter, I do it with my 100% in it. Serving people is कर्म योग, कोई डाउट नहीं है। So for me, that is my way to be attached to God. Absolutely. कहा ना, कर्म योग तो सबसे अच्छा, क्योंकि कर्म तो आपको करोगे ही करोगे। ऐसा कुछ टाइम ही नहीं है जब आप कोई कर्म नहीं कर रहे। उसी को योग मतलब क्या है? You are one with the divine and then you do that. कोई भी कर्म करो, अपने ईगो से नहीं करना है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर कर लो, यू आर ए कर्म योगी। इट्स वेरी इजी। तो कर्म योग कम्स फर्स्ट। जो ऐसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाएगा, सबसे पहले कर्म योग करेगा वो, उसके बाद थोड़ी सी भक्ति योग आ जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से ट्यूसडे को मंदिर जाने लग जाएगा, अगर वो कोई मंदिर जाने वाला है, राइट? या थोड़ी ज्यादा अच्छे से भक्ति आराधना करने लगेगा, प्रेयर करने लगेगा, पूरे दिल से करने लगेगा, काइंड ऑफ थिंग। तो वो भक्ति शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत।
तो कर्मयोग और भक्ति योग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट। राजयोग में मुश्किल है, आपको योगा मैट लेके पार्क में भागना पड़ेगा, जो आम लोग करते हैं। दैट इज द वे ऑफ राजयोग इज टेक द योगा मैट, गो देयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, राइट? सो स्टार्ट विद दैट बट स्लोली यू विल फॉल इनटू लाइन। तो वो राजयोग है। या भगवत गीता के 2 श्लोक याद कर लिए, ठीक है, वही करो, बट एटलीस्ट यू आर ऑन द ज्ञान योग। सो डू व्हाटएवर कम्स टू यू, दैट्स फाइन। धीरे धीरे आ जाएगा। पहले बेबी स्टेप्स ही लोगे ना, पहले जायंट स्टेप थोड़ा ना ले लोगे। तो बिल्कुल सही है प्रीति जी, बिल्कुल परफेक्ट। यस, एनीबॉडी एल्स? पार्थ, यू वांटेड टू से समथिंग? क्लियर? ठीक कर दिया जो मैं कहना चाह रहा था। क्लियर हो गया? वेरी गुड। Yeah. एनीबॉडी एल्स? ममता जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? yes yes Yeah, I go think ahead. इसीलिए मतलब जो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पाई, इसीलिए everybody says whenever you want to do something with full concentration तो अपने distractions सारे हटा दो। तो I think automatically हम शायद भक्ति योग में पहुंच जाते होंगे। Absolutely. If you are highly focused, you will be devoted to whatever you do. right तो Devotion ऐसे is तो फिर सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मतलब है ना, कोई किसी ना किसी योग में होगा ही, unknowingly knowingly। yeah, that's perfect. So all the scientists, they are so devoted to their work, they don't even know whether दिन है रात है। You've seen that? right Einstein is working, उसकी कैंडल जल रही है and बाहर दिन निकल आया, he doesn't even realize कि रात खत्म हो गई है। That is the kind of scientists who are working. They are not even aware क्या हो रहा है। इतना खो गए यहाँ पे, इतना खो जाओगे, अपने आप को भूल गए, सारी दुनिया को भूल गए। That is it. Perfect. Welcome Leslie. Yeah, so do ask if you have any questions. We are talking of the path of sadhana, right? Okay, now without wasting any time, I'll give you that test. Okay, so the test which will tell you whether a goal is to be followed or not, or a desire has to be, उनको fulfill करने के लिए efforts डालने हैं कि नहीं, तो इसको हम test बोलते हैं। This test is called PAW. This is the acronym PAW, P-A-W. Okay, so what is PAW? I'll explain that. P means, is it possible? The first question you have to ask is, तो आपकी कोई desire है, आपकी कोई goal है, तो आप उसको check करेंगे इस तीन दरवाजे से। आपको आपके इस desire को निकलना होगा। तो वो 3 दरवाजे क्या हैं? 3 questions हैं। The acronym is PAW, P-A-W. First question is it possible? पहले मैं बता देता हूँ, then we will explain. Second is it achievable? And the third is, am I worthy for it? Or do I deserve it? These are the 3 questions. Okay. Now let us take an example and understand this. सबको clear हुआ? 3 क्या हैं? PAW. Is it possible? Is it achievable? Am I worthy? Which means basically, do I deserve it? So now you know the concept जो मैं बता रहा था, desire and deserve का combination वहां पे clear हो जाएगा। तो जिसको लग रहा हो इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर ली, हमको कुछ याद नहीं आ रहा, तो ये पॉ टेस्ट याद कर लो। पॉ याद रहेगा, कैट का पॉ होता है ना, पंजा, तो पंजा याद रखो। पंजा क्या है? PAW. इज इट पॉसिबल? इज इट अचीवेबल? डू आई डिजर्व इट? और एम आई वर्दी? वर्थ, W इज फॉर वर्थ, वर्दी। ठीक है। नाउ सपोज one human being has a desire. कौन सी डिजायर है? I will land on the sun. किसी दिन मैं सन पे लैंड करूंगा। Now is it possible? Has any human being landed on sun? Or rather landing तो छोड़ दो, उसके आसपास भी कहीं गया है? नहीं। And he can have a great idea by the way. मैं रात को उतरूंगा तो ठंडा होगा। हाँ, great, very good, great understanding, right? So you have to understand, यहाँ बैठ के आप कुछ भी सोच सकते हो, but that desire is impossible. You can't land तो छोड़ो, आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। The earth can get burnt off if it goes anywhere near to the sun beyond a particular range, correct? तो अर्थ में लाइफ अगर सस्टेन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सन से उसी डिस्टेंस पे। Anyway, I will not go into the theory part of it, but the idea is it possible? No, बड़ा big no वहीं पे आ गया। This desire is not going to manifest, come what may। पूरी जिंदगी लगा लो आप इसमें, नहीं होने वाला है। तो is it possible? सबसे पहले humanly possible. You are a human being. Has any human being done it? Correct?
Even if he has not done it, and if you're confident that you can do it, then it has to be something very, very reasonable. Your conscious mind has to first accept it. Remember that. मैं तीनों को link करूंगा आपके mind से. Is it possible has to be decided by the conscious mind. Clear है ये? जब तक conscious mind okay नहीं करेगा, वो desire subconscious mind तक पहुंचेगा ही नहीं. Conscious mind is the gatekeeper. तो आपके जो भी डिजायर्स हैं, आप इन सबको इन 3 टेस्ट में से निकाल के देखिए. सबसे पहले कॉन्शियस माइंड इज द गेटकीपर. कॉन्शियस माइंड हैज टू से यस. ओनली देन द डिजायर विल गो टू द सबकॉन्शियस माइंड. तभी वो हार्मनी की बात कर सकते हैं हम. अभी तो पहुंचा ही नहीं वहां. तो पहले स्टेप में जो नो हो जाए, इज इट पॉसिबल, दैट मींस इट इज इम्पॉसिबल, इट विल नेवर बी मैनिफेस्टेड. इट हैज टू बी इन योर बिलीफ सिस्टम. दैट टेक्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन. इज इट अचीवेबल फॉर मी? Sachin Tendulkar has scored 100 hundreds in test cricket, one-day cricket, whatever. So is it possible? Yes, it is possible. Virat Kohli is going to approach that very fast, right? Statisticians say that. So possible? Yes, possible. Is it achievable for me? 100% no. मेरे को बैट पकड़ना नहीं आता उनके जैसे, right? वहां से अगर कोई फास्ट बॉलर दौड़ता हुआ आएगा, I will also run the other way around, right? So I can't stand one ball from them. हड्डियां टूट जाएंगी अगर बॉल लग गई कहीं तो. ओके, 150 की स्पीड पे बॉल आएगी बीमर, तो मैं तो देख के पहले ही मर जाऊंगा. तो नॉट अचीवेबल फॉर मी. तो क्लियर है? इज इट पॉसिबल में यस आएगा, क्योंकि पीपल हैव अचीव्ड इट. Sachin has achieved it, Virat has achieved it, many others can achieve it. Maybe in the future many more will achieve it. Is it achievable for me? No way. To God, this desire cannot be manifested. Or I desire to be the Prime Minister of United States. Possible? No, impossible. मैं वहां का सिटीजन भी नहीं हूँ, आज तक यूएस में. हो सकता है मेरा पासपोर्ट भी वैसे तो है. हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसने पासपोर्ट भी नहीं बनाया हो, तो फॉरगेट इट. आप इंडिया के बाहर जाने लायक नहीं हो, तो आप ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है, अचीवेबल भी नहीं है. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? आई एम एक्सप्लेनिंग सम absurd examples, giving you absurd examples so that you understand what I'm saying. तो आपकी डिजायर जो है उसको पहले टेस्ट करिए. इज दैट डिजायर एक्सेप्टेबल टू द कॉन्शियस माइंड और नॉट? इज इट पॉसिबल? इज इट अचीवेबल? क्लियर हो गया? थर्ड जो है, ये दोनों बड़े जल्दी सवाल आपको जवाब मिल जाएंगे. आप 2 सेकंड 5 सेकंड सोचेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पॉसिबल है या अचीवेबल है. करेक्ट? कितने लोगों को लग रहा है ये दोनों आसान है टेस्ट? थर्ड टेस्ट सबसे मुश्किल है. ये है एम आई वर्दी. इसका कोई मेजरमेंट नहीं है. दिस इज योर परसेप्शन ऑफ व्हाट यू थिंक यू आर. डू आई डिजर्व इट? एम आई वर्दी? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज which I have observed during my trainings and during my healings. People are just not willing to accept that they deserve it. They are convinced, subconscious mind में thought है, I don't deserve to be happy. I don't deserve any love in my life. I am not worthy. This is where you have to work hard. Because if you know who you are, you will know that you are worthy of anything and everything in this universe. You are divine. And if you are divine, you are worthy of all the worldly success and pleasures. You deserve everything. There is nothing that you don't deserve. Am I worthy जो है, ये आपके हाथ में है. वो आप इंप्रूव कर सकते हैं रोज, और आपकी पूरी साधना उसके लिए है. मेकिंग सेंस? तो जो कुछ हमने लास्ट वीक की थ्योरी पढ़ी और इस वीक की डिस्कशंस करी, उसका समराइजेशन है इन 3 क्वेश्चंस में. इज इट पॉसिबल? इज इट अचीवेबल? एम आई वर्दी? मेकिंग सेंस? अब आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट डज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वांट? 3 areas of life: health, wealth, relationships. So if I say Shashidhar enjoys perfect health, perfect wealth, and perfect relationships in life. Okay, is it possible? 100% yes. बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और अच्छे रिलेशनशिप्स. और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. by the way, as a human being, it is my birthright. How many of you believe that? How many of you believe that?
Yeah. So is it possible? Yes. Yes. Is it achievable? Yes. Do I deserve it? Absolutely yes. 100% worthy. ये जवाब देने लग जाओगे, आपके डिजायर्स फुलफिल होने लगेंगे. अधिकांश लोग कहाँ अटकेंगे? तीसरे क्वेश्चन में. Am I worthy में अटक जाएंगे. क्यों? If you don't love yourself, if you don't accept yourself, if you don't respect yourself, if you don't forgive yourself, if you are not grateful to yourself, आप इसका जवाब 100% यस नहीं बोल पाएंगे. और ये सब बोलने के लिए आपको क्या करना है? आपको साधना करनी है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, क्योंकि ये डिजर्विंग वाला स्टेट है. समझ रहे हैं ना? So these are the 3 tests. This will remind you of the whole session, and this will put you on the path of sadhana, and this will help you to create magic and miracles in your life. तो मेरे ज्ञान का टाइम खत्म. Yeah. Anybody has any questions or doubts, you can ask. Remember this PAW test. CAT का PAW, PAW. Is it possible? Is it achievable? Am I worthy? याद रहेगा? किस किस को याद हो गया? किस किस को आगे भी याद रहेगा कल तक? Good, great. So any questions? Go ahead. Fire. अनीता जी, समझ में आ गया? 3 सवाल क्या हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अचीवेबल है? क्या मैं डिजर्व का क्या होगा? क्या मैं इसे डिजर्व करती हूँ? ठीक है ना? समझ में आ गया ना? हाँ, गुड. तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने बोला सब इंग्लिश में सुना दिया, मेरे को समझ में नहीं आया. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, तो कोई सवाल नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. एंड माइंड यू, whatever desires you have, ask these 3 questions. Is it possible? Yes. Is it achievable? No आ रहा है अगर, then you have to improve your knowledge, you have to improve your skills, क्योंकि achievable is a matter of skill set. अभी मैं वेट्स नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं, जिम जाऊंगा, वेट्स बढ़ाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, उसके बाद करूंगा. पॉसिबल, तो वहां पे स्किल सेट बढ़ाने हैं आपको. ओके, तो पॉसिबल है, अचीवेबल है, और मैं वर्दी हूं, तो वो डिजायर फुलफिल होना ही है. कब होगा? ये आपका इक्वेशन है यूनिवर्स के साथ, उसमें बाकी सारे लॉस लगेंगे. फिर पहला लॉ, यूनिवर्सल लॉ बी, लॉ ऑफ योर पोटेंशियलिटी, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ कोर्स, एंड द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जो हम बात कर रहे हैं. सब कुछ अगर सही करोगे, सक्सेस विल फ्लो टू यू. You will think and the desires will manifest. That will be the power in you. How many of you want that power? Good. So you have to bring your conscious mind and subconscious mind into harmony. Follow a sadhana, follow a practice, and move forward on your spiritual journey. Simple. Easy नहीं है, simple है. Shortcut नहीं है, उठना पड़ेगा आपको. साधना अगर साधक हो तो आपको सुबह उठ के काम करना पड़ेगा. और सुबह का मतलब किसी की सुबह 3:30 बजे शुरू होती है, किसी की सुबह 6 बजे शुरू हो सकती है. That's fine. That's entirely up to you. Or you want to live a normal get up at 8 o'clock, fine. वो भी ठीक है. आप बाकी दिन में, पूरे दिन में आप मैनेज करिए. I'm not saying anything specific. Do whatever comes to you naturally, but be committed to move forward on your spiritual journey. That's it. Right, so we have come to the scheduled close. Let me have some sharings. What are you taking away from the session? And then we will close the session. Right? तो सब बताएंगे एक लाइन में फास्ट. किसी का कोई सवाल है? पहले सवाल पूछ लीजिए. Any questions? First you ask that, then let me know what you're taking away from the session today. हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? नीता जी, आप बोलेंगे? You are unmuted. हाँ जी, बोलिए. वो सेल्फ लव वाला, डू आई डिजर्व इट, ये वाला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है. डू आई डिजर्व इट, सो थोड़े दिन से आ रहा है वैसे तो, आज ज्यादा. जी जी, तो वो काफी कन्विंसिंग है, जो मुझे लगता है कि चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. Very good. Powerful. So work on that. Anyway, you are in the Saturday Vedanta program, so that is going to give you a boost, definitely, right? Yes, very good, Mitaji. Good job. Good realization, good insight. Okay, who else? सबको बोलना है. हाँ, जल्दी सवाल नहीं है तो फटाफट शेयरिंग करेंगे. Yes, Rekha ji, go ahead. I want to go with paw. You want to go with paw? Very good. Go ahead. Yeah. अपने पंजे तैयार कर लो.
Huh? बिल्कुल right. Right. Great. Wonderful. Very good. Yes. Who else? Parth, anything for you? No, I will come one by one to everybody. Okay. Parth, anything for you? Yeah, the worthiness question है obviously I वहाँ जहाँ पे मेरी desires lack कर रही है, gap आ रहा है, वहाँ पे मेरे लिए ये question पूछना है simple. So you found a way to analyze your desires and logically go ahead. Correct? Great. Wonderful. Do that. That's why I said थ्योरी बहुत कुछ है, लेकिन थ्योरी जानना जरूरी था. मैं सीधा ही पहले ही कल पिछले सेशन में ही बहुत दे देता, कोई मेरी थ्योरी सुनता ही नहीं. समझ रहे हो? समझ नहीं पाते, क्योंकि शॉर्टकट चाहिए ना सबको. शॉर्टकट मिल गया तो फिर लॉन्ग जर्नी कौन पकड़ेगा? लास्ट में हम पहले बोलते हैं पूरा चैप्टर कौन पढ़ेगा, आखिरकार समरी पढ़ लेते हैं. वही हाल है. तो दिस स्पॉट टेस्ट इज अ समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन इन द लास्ट 2 वीक्स. लेकिन वो जानना जरूरी था. जब तक वो नहीं जानते, स्पॉट टेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है ना? Good, very good path. Good job. Yes, Mamta, anything for you? What are you taking away from the session? The 4 ये जो भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, this is something like हाँ, now it makes sense कि why some people like even though वो spiritually कुछ नहीं कर रहे होते, but अपने field में इतना excel क्यों करते हैं? Because इनमें से कुछ ना कुछ वो कर ही रहे होंगे. It's just that we don't know. See, even if you are 100% absorbed in cricket, you will be known as the god of cricket, right? Right. And you will produce magical results. Hundreds. लोग एक सेंचुरी मारने के लिए तरस जाते हैं. Representing Indian team is a big thing. Hitting a century is a great thing, and then hitting 100, people will get a heart attack even hearing that. Possible. If you are the god of cricket, you will do that, right? Great. Good insight, Mamta. Good job. Anita ji, anything for you? कुछ नया बोलना चाहेंगे आखिर में? सर बस सब अपना कमिटमेंट पक्का कर रहे हैं इस प्रोसेस को आगे करने के लिए. Very good. So go ahead and be part of the Wednesday groups, and you're also there in the Saturday group. Time पे आइए, आप थोड़े से लेट हो रहे हैं. हाँ. Okay, good, very good. Yes, Neeta ji, anything for you? हो गया? Okay, done. Tony, anything for you? Yeah, just wanted to say one thing that I feel that the path is, I'm following whatever best possible, slow and steady. I am getting there. Very good. Follow any path. Make your own schedule. Yeah. And if anybody has any questions, you can always, you can always get in touch with me and get more clarity, right? Yeah. कौन सा path आपके लिए सही होगा, कौन सा नहीं? Don't worry on that. You will get the divine guidance. Start walking on the journey. Divine will guide you. Yes. Leslie, I know you are walking already, huh? Literally. So tell me anything you want to ask. Share. No, I'm very so. I don't have any question. Okay, good. आपकी आवाज ऐसे ही कट रही थी. Okay, no problem. Yes. Anybody else? और कौन बताना चाहेंगे? We are done with everybody. Preeti ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं? हो गया? Okay, good. So with that, we come to the end of the session. We have 6 minutes over time, cross the limit. So we will close the session now. So thank you very much for your participation. And I hope as my commitment that all of you got a lot of value to attend the programs, invite your people, share the recording with others. They will also benefit, because that is the only purpose of this Wednesday session, is that I spread the awareness, people get value and transform their life, right? So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great week, enjoy a great life, and let's meet again next Wednesday, 9 p.m. Thank you very much. God bless. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Bye.